السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال فی موضع آخر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم بارک۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ایک مرتبہ ہم ان کی طرف سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، علماء کی توجہ چاہوں گا، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ میرے والد شہید فرمایا کرتے تھے 1.25 لاکھ نبی آ گئے، ذکر نہیں آیا، چرچا نہیں آیا، جھنڈے نہیں لگائے گئے، لیکن آمنہ کے در یتیم ابھی آئے بھی نہیں ہیں، زمانے پہ چھا بھی گئے ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کوئی بستیوں کا نبی، کوئی گلیوں کا نبی، کوئی چوکوں کا نبی، کوئی چراہوں کا نبی، کوئی زمانے کا نبی، کوئی ریاست کا نبی، کوئی جزیرے کا نبی، کوئی موزے کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی گوٹھ کا نبی، کوئی چوک کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ہواؤں کا نبی، کوئی فضاؤں کا نبی، کوئی میدانوں کا نبی، لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر جو نبیوں کا نبی۔ ایسے نہیں، سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ لنڈی کوتل والے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ذرا آپ بھی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ اگر ان میں کملی والا نہ آتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ ادب سے پکارے ملائکے یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، ادب سے پکارے فرشتے یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا۔ شاعر کہتا ہے، میں دوسرا جو عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں، نام معاویہ جو آ گیا میری زبان پر، نام معاویہ جو آ گیا میری زبان پر، جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر۔ منکر کی کیا مجال، کالے کی کیا مجال، میرے گھر تک آ سکے، نام معاویہ لکھوا دیا جو میں نے اپنے مکان پر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ فتح مباہلہ کانفرنس میں جو 62ویں آج منعقد ہوئی ہے، اس میں
मौलाना इलियास चिन्योटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर चंद एक बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। मैं आया तो पहली दफा हूं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कोई नई नहीं है। आज मैं आया हूं तो कल ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद आया करते थे, आज मैं आया हूं तो कल मेरे बाबा आया करते थे। वो जब तक दुनिया में मौजूद रहे उस वक्त तक वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे। अल्लाह ताला उन समेत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाहि ताला अलैह समेत जितने भी रुफाका हैं, जितने भी अकाबिर हैं, उन तमाम को जन्नत के आला बाला खानों में जगह नसीब फरमाए। यकीनन आज दो उन्वान बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक उन्वान वो है जिस उन्वान के तहत हम हर साल 26 फरवरी को यहाँ पे जमा होते हैं, जिस फतह मुबाहला कॉन्फ्रेंस में हम अपनी हाजिरी लगवा कर खत्म नबुव्वत के मुहाफिजों में अपना नाम लिखवाते हैं। कादियानियों की जुर्रियत हमेशा की तरह आज भी सर उठा के खड़ी है। आज मुझसे पहले बुजुर्ग रो रो कर अपना बयान फरमा रहे थे। उनके आवाज के अंदर जो सोच था वो बता रहा था कि वो किस अंदाज से इस उन्वान पर हमारे इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के सो कॉल्ड चीफ जस्टिस के बयान पर वो किस तरह छलनी है। मैं उन्हें चीफ जस्टिस नहीं कह सकता, मैं उन्हें फायज ईसा कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस नबी पाक के दुश्मन को यूं रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अकाबिर ने अपनी जवानियां लुटाई हैं, बच्चों को यतीम करवाया है, बीवियां बेवा हो गई हैं, लाखों नजराने जानों के पेश कर दिए गए हैं, हर घर से जनाजा उठा है। हमने बड़ी बड़ी मजबूत दरबारों को गिराया है, बड़ी बड़ी चट्टानों का हमने मुकाबला किया है। मैं उस घराने से बिलोंग करता हूं। जब मेरे वालिद 1954 के अंदर पैदा हुए, उस वक्त मेरे दादा जान मौलाना मोहम्मद अली जामबाज साहब सक्कर जेल के अंदर खत्म नबुव्वत के लिए अपनी जान को खत्म नबुव्वत के हवाले करते हुए कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे। जिस वक्त मेरे वालिद पैदा हुए, मेरे दादा जान खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए जेल की काल कोठरी में मौजूद थे। और 1999 को जब मेरे वालिद जेल में थे, मियां वाली की जेल में, अबू बकर सिद्दीक की जंग लड़ने के लिए, उमर का अदम का बचाने के लिए, उस्मान का हया बताने के जुर्म में, अली की जुर्रत सिखाने के जुर्म में मियां वाली की जेल में थे। तब मैं पैदा हुआ था। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, वो चाहे फायज ईसा हो या कोई भी हो, फतह मुबाला को पढ़ लेते तो आप ये बयान न देते। इतने साल 7 साल तक उनके 4 खलीफाओं को जो चैलेंज दिया जाता रहा, उनका इंतजार किया जाता रहा। असेंबली के फ्लोर पर आप ही के मसलक पर बैठे हुए लोगों ने इस कानून को पास करवाया कि कादियानियत नबी पाक की दुश्मन है, कादियानी मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के मुखालिफ है। आप ही लोगों ने कानून बनाया। आज कई साल गुजरने के बाद किसी गैर के एजेंडे पर, किसी गैर मुल्की टौटी के ऊपर आकर अगर आप खत्म नबुव्वत पर एक उंगली भी बढ़ाएंगे, रब्बे काबा की कसम, ये सुन्नी नौजवान आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको वो वक्त याद करना चाहिए जब मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी साहब वहां पे मुबाहले के लिए गए थे, तो 4 तंजीमात ने उन्हें अपना नुमाइंदा कहकर वहां पे खड़ा किया था। तंजीम अहले सुन्नत वल जमात भी थी, इशाअतुत तौहीद भी थी, आलिमी मजलिस खत्म नबुव्वत भी थी, जमीयत उलमाए इस्लाम भी थी। आज हमारे बड़े भाई मौलाना इलियास चिन्योटी साहब असेंबली में मौजूद हैं और ये बता रहे हैं, हम इनके लिए ऐलान कर रहे हैं, अपने हाथ बुलंद करके ये ऐलान कर रहे हैं। आज ये पूरी देवबंदियत का नुमाइंदे बनकर पंजाब असेंबली में मौजूद है। अगर नबी की खत्म नबुव्वत पर कोई उंगली उठाएगा तो मुकाबला किया जाएगा, कदम बढ़ाएगा, मुकाबला किया जाएगा। हम जवानियां लुटाने से भूल कर नहीं आए, हम जेलों में जाना भूल नहीं गए, हम जनाजे उठाना भूल नहीं गए। जब तक जिस्म में जान रहेगी, नबी की खत्म नबुव्वत का दिफा होता रहेगा। हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, शान सहाबा, अजमत सहाबा, हजरत मौलाना नौमान। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? बंदे नू वेखीदा हुंदा है,
کوئی گرم تار بن کے بھی آئیے، ذرا تھوڑی دیر جاگ لو، کچھ نہیں ہوتا، ذرا بلند آواز نہ لاکھو سبحان اللہ، سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سر پہ ہے۔ میں اپنے دوسرے عنوان پر جو آج وقت کی اہم ضرورت ہے اس پر چند ایک موتی بیچ کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ ہم ہر گھر کی کہانی دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ کہتا ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ کیا زیادتی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کو کاروبار بھی مل گیا، جائیداد بھی مل گئی، حصے بھی مل گئے، والدین بھی مل گئے، پیار بھی زیادہ مل گیا، میرے حصے میں کچھ نہیں آیا، میں مظلوم بن گیا۔ درمیانہ بیٹا آتا ہے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ بڑا پہلا تھا، چھوٹا لاڈلا ہے، ان دونوں کو سب کچھ مل گیا، میرے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ بڑا بھی یہی کہتا ہے میں تو بڑا تھا، خاندان کی ذمہ داری مجھ پہ، رشتے نبھانے کی ذمہ داری مجھ پہ، والد کا جانشین بننے کی ذمہ داری مجھ پہ، میرے اوپر بھی بڑا ظلم ہوا۔ استاد بھی یہ کہے، پیر بھی یہ کہے، ولی بھی یہ کہے، خانقاہی بھی یہ کہے، فدائی بھی یہ کہے، شدائی بھی یہ کہے، نبوت کے ختم نبوت کا جعلہ بھی یہ کہے، ناموس صحابہ کا پروانہ بھی یہ کہے۔ میں نے کہا ساری کائنات میں ہر بندہ اپنے آپ کو مظلوم کہتا اور سمجھتا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک بندہ وہ تھا جس نے کہا کہ مدینہ کے اندر ایک بندہ مظلوم شہید کر دیا گیا، جس کا 40 دن تک پانی بھی بند تھا، کھانا بھی بند تھا، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ اسی کے ہاتھوں سے خریدے ہوئے میٹھے کنویں سے ایک پانی کی بوند بھی اسے میسر نہیں آتی تھی۔ کہنے والے نے کہا مظلوم مدینہ عثمان غنی ہے، میں نے تسلیم کر لیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، دوسرا مظلوم بھی ہے جو کربل کی وادی کے اندر اپنا لہو بہا کے آیا ہے، بچوں کو لٹا کے آیا ہے، بھوکا رہ کے آیا ہے، لاشیں اٹھا کے آیا ہے، جوانی لٹا کے آیا ہے، جسے سجدہ نہیں کرنے دیا گیا، جس کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی مظلوم آلہ، وہ بھی مظلوم آلہ، یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، یہ بھی لاڈلا، وہ بھی لاڈلا، یہ بھی قریبی، وہ بھی قریبی۔ لیکن میں ایک ایسے مظلوم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آج تک کسی نے مظلوم گردانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی نہیں ہے، تسلیم بھی نہیں کیا۔ جبہ و دستار پہننے والا بھی اس کا نام نہ سنے، پیر بھی اس کا نام نہ لے، وڈیرا بھی اس کا نام نہ لے، سو کارڈ مولوی بھی اس کا نام سننے سے انکاری ہو جائے۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ میرے نبی کا لاڈلا بھی ہے، پیارا بھی ہے، قریبی بھی ہے، خادم بھی ہے، چوکیدار بھی ہے، سپاہی بھی ہے، شدائی بھی ہے، کاتب بھی ہے، منشی بھی ہے۔ اسے امیر معاویہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے کلمہ ہم کو دیا، نماز ہم کو دی، روزہ ہم کو دیا، جہاد ہم کو دیا، اذکار ہم کو دیے، للکار ہم کو دی، جرأت اور ہمت ہم کو سکھائی، حتیٰ کہ محمد کے مدینے کی خوشبو ہم تک پہنچا چھوڑی۔ نبی کا قرآن لکھا، نبی کا فرمان لکھا، نبی کی حدیثیں لکھی، نبی نے ان کے لیے اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیا۔ میں نے کہا ان کا قصور یہ ہے آج میرے ماتھے پہ یہ محراب سج رہا ہے، اسی کا تو صدقہ ہے، میرے چہرے پر داڑھی سجی ہے، اسی کا تو صدقہ ہے۔ اس نے 70 تک فوج پہنچا چھوڑی، ملتان میں جیالے آ گئے، کندھار میں آ گئے، کابل میں آ گئے، افغانستان میں آ گئے، بلوچستان میں آ گئے، میلسی اور جنگ کے اندر چلے آئے، شکر میں چلے آئے، دنیا کے کونے کونے میں۔ اس کا قصور یہ ہے اس نے نبی کی حدیث کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، اے دنیا کے لوگوں اس بندے کو خوشخبری سنا دینا جو سب سے پہلے سمندروں کی جنگ لڑے گا۔ میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم جس نے جنگ لڑی تھی وہ معاویہ بن ابی سفیان تھے، جس نے مدینہ کے لیے نہر بنائی تھی وہ معاویہ بن ابی سفیان تھے، جنہوں نے وظیفے مقرر کیے تھے وہ معاویہ تھے، جنہوں نے اماموں کی تنخواہوں کو ڈبل کر دیا تھا وہ معاویہ تھے، جو سمندروں کے سینے کو چیر گئے تھے وہ معاویہ تھے، جس نے افریقہ کے جنگلات کو شکست دے دی تھی وہ معاویہ تھے، جنہوں نے کیساریہ کے اندر سب سے بڑی مسجد بنا کر اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا ایک لمبا منصوبہ بنا لیا تھا وہ
मुआविया थे। हसन जिससे वजीफा ले वो मुआविया थे। हुसैन जिससे पैसे ले वो मुआविया थे। मैंने कहा फिर ये कहने दीजिए, आज से 30 साल पहले गलियों में कूचों में नहीं बल्कि हर शहर में चंद मुआविया नाम के लोग मौजूद हुआ करते थे। मैंने कहा लाखों सलाम हक नवाज जंगवी तेरी कदम पर, तेरी लहद पर, तेरी कब्र पर। आज हर घर की बात नहीं करता, हर गली की बात करता हूँ, हर मोहल्ले की बात करता हूँ। तुम जिधर भी जाओगे नामे मुआविया नजर आएगा। अगर नामे मुआविया ना हुआ तो जंगवी के दीवाने कामे मुआविया करते हुए तुम्हें आज भी दिखाई देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि तो लंघ रही है? जरा बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। जिनको अच्छा लग रहा है वो तो कहे ना सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया का कसूर क्या है? ये कसूर है कि उन्होंने मदीना की खिदमत की है। कोई कहने वाला कहता है कि दो भाइयों की लड़ाई हुई, अली और मुआविया आपस में लड़ पड़े। हम छुपाएंगे नहीं, जो हकीकत है वो बताएंगे। मैंने कहा लड़ाई बताते जरूर हो, जरा ये भी तो बताओ ना कि अली के ग्रुप का एक बंदा शहीद हुआ, सफे बंध गई, इमाम नहीं आया। अली से पूछा नमाजे जनाजा कौन पढ़ाएगा? अली ने कहा मेरा भाई मुआविया बिन अबी सुफियान पढ़ाएगा। मैंने कहा ये भी तो बताओ ना। हजरत अमीर मुआविया के दो साथी शहीद हो गए, इमामत के मुसल्ले पर अमीर मुआविया नहीं आए। पूछा क्यों नहीं आ रहे? फरमाने लगे बंदे मेरे शहीद हुए हैं, जनाजा अली पढ़ाएंगे। जरा बोलो ना यार बुलंद आवाज से, सारे मिलकर कह दो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये क्यों नहीं बताते? जब एक रूमी बादशाह ने कहा था ए अमीर मुआविया जरा तू मैनू मोटा लावे तो सही, जरा मैनू हिम्मत देवे तो सही, जरा मेरे नाल टुरी तो सही, मैं तेरा मेरा भी दुश्मन अली है, तेरा भी दुश्मन अली है, जरा मैनू तू मोटा लवा, मैं अली नू नऊजुबिल्लाह नुकसान पहुंचावांगा। रब्बे काबा की कसम वो कौल क्यों नहीं बताते? तेरी किताब में भी है, मेरी किताब में भी है, ईमान वालों की किताबों में भी है, मुसलमानों की किताबों में भी है कि रूमी बादशाह को अमीर मुआविया ने अजीम शान मुंह तोड़ जवाब देकर फरमाया था, और रूमी कुत्ते तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई अली की तरफ मेरी आंख से देख सके? मैं ये बहुत जल्द एक ग्रुप बना रहा हूं जो अली की हिफाजत के लिए होगा, और अगर तूने दोबारा ये जसारत की अली की हिफाजत के लिए जो ग्रुप बनेगा उसकी पहली सफ का जो मुहाफिज होगा तू देखेगा उसे दुनिया मुआविया बिन अबी सुफियान कहेगी। बताओ ये अजमत है या नहीं है? किसी ने कहा हजरत अमीर मुआविया ने किया क्या है? मैंने कहा नबी से पूछो ना, जिन्होंने 12 मरतबा अपनी हदीस में मुआविया का नाम लेके मुखातिब किया है। जरा नबी से पूछो ना, जिनके 156 हदीस को मुआविया बिन अबी सुफियान ने लिखा है, उस नबी से पूछो ना जिस नबी ने 113 खत काफिरों के बादशाहों को लिखे, और इन 113 खतों में से 70 अमीर मुआविया के हाथों से लिखे गए। मैंने कहा नबी से पूछो ना कि कातिबे कुरानों में से 6ठा नंबर किसका था? वो अमीर मुआविया ही तो था। नबी ने जिसे बशारतें दी थी वो अमीर मुआविया ही तो था। जो नबी का जियाला बना था वो अमीर मुआविया ही भी तो था। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लिए जा रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी मदीना से निकले, दिल में ख्याल आ गया, मेरी बात को जाया मत कीजिएगा। नबी को ख्याल आ गया मुझे वुजू बनाना है। ये सोचकर नबी ने सोचा कि मैं जाके वुजू बना के आता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने ये सोचा कि मुझे वुजू करना है। ये सोचकर अल्लाह के नबी पीछे मुड़े, देखा कि मुआविया पानी लेकर पहले ही खड़ा है। अल्लाह के नबी ने पूछा मुआविया मैं तो तेनू सदया भी नहीं, मैंने तो आपको बताया भी नहीं मुझे वुजू की हाजत है। हजरत अमीर मुआविया ने मुस्कुरा के अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्यों जरूरत नहीं है? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया 2 साल से खिदमत में हूं, 2 साल से खिदमत में हूं, मुझे पता है किस वक्त आपको किस चीज की हाजत है। तो मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल मैं पढ़कर झूम गया। वो फरमाने लगे सारी कायनात का जो मिजाज समझे
उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और जो मोहम्मद का मिजाज समझे, एक को सिद्दीक कहते हैं, दूसरे को अमीर माविया कहते हैं। बताओ ये अजमत है या नहीं है? बुलंद आवाज से है या नहीं है? आखिरी बात करने लगा हूं, मैंने सारी बातें कर दी, अब मैं वजह भी बताने लगा हूं कि ये वजह क्या है कि हजरत अमीर माविया को हमने अपने से दूर क्यों किया, उसकी वजह है। और इंशाअल्लाह आज इस अजीम शान इज्तिमा की वसातत से हम ये वादा करेंगे कि आइंदा हम उस वजह पर गौर करके उन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में से खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे, बुलंद आवाज से करेंगे। वजह क्या है? हमने हजरत अबू बकर की शान देखना थी, हम कुरान के पास गए। किसके पास गए? जरा सारे बोल कर। किसके पास गए? हमने हजरत उमर का तारुफ लेना था, हमने कुरान से पूछा। हमने उस्मान के बारे में मालूमात करनी थी, हमने कुरान से पूछा। हमने अली की जुर्रत देखना थी, हमने कुरान से पूछा। हमने हसन और हुसैन का चेहरा देखना था, हमने कुरान से पूछा। हमने सईद और साद अब्दुल रहमान अबू जर हजरत अयूब अंसारी को देखना था, हम कुरान के सीने में उन्हें ढूंढने लग गए। अगर कुरान से नहीं मिला, हमने अबू बकर को नबी के फरमान में देखा, उमर को नबी के फरमान में देखा, उस्मान और अली को नबी के फरमान में देखा, तलहा और जुबैर को नबी के फरमान में देखा, हसन और हुसैन को नबी के फरमान में देखा। जरा जुल्म देखिए, जब बात अमीर माविया की आई, हम कुरान के पीछे क्यों नहीं गए? हमने फी सुहुफिन मुकर्रमा क्यों नहीं पढ़ा? मरफूअतिन मुतहहरा क्यों नहीं पढ़ा? फी ऐदी सफरा क्यों नहीं पढ़ा? किरामिन बाररा क्यों नहीं पढ़ा? अल्लाहुम्मा जअलहु माविया था हादियम महदियम वाति बिही क्यों नहीं पढ़ा? अहलमु मिन उम्मती माविया क्यों नहीं पढ़ा? अव्वल जैशिन यफ्जुल बहरा फकद औजबू क्यों नहीं पढ़ा? जब माविया की बारी आई, हम तारीख के पीछे भागे। जब माविया की बारी आई, लफेड़ों के पीछे भागे। जब माविया की बारी आई, हम उन नशीयों के पीछे भागे, हम उन चपड़ासियों के पीछे भागे, हम उन नीच लोगों के पीछे भागे जिन्होंने 3 सदियों के बाद तारीख को तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश किया था। रब्बे काबा की कसम, आज हम ऐलान कर रहे हैं कि जब हम अबू बकर की अली से लेकर हजरत अमीर माविया की वहां तक जितने भी सहाबा को तलाश करेंगे, या नबी की जुबान से तलाश करेंगे या अल्लाह के फरमान में तलाश करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? और ऐसी तारीख हमारी माओं की ठोकर पर जो मेरे सहाबा की शान घटाए और जो मेरे सहाबा की शान बताए जैसे कुरान ने बताई है, तो रब्बे काबा की कसम हम उन्हें उसे अपने सीने से भी लगाएंगे, अपने सर पे बिठाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वल आदियाति गबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फासरना बिही नका फवसतना बिही जमा। मैंने कहा ए कुरान ये क्या है? अल्लाह के कुरान ने कहा इस सूरत के अंदर मोहम्मद के सहाबा हैं। मैंने कहा कोई जमीर तो लौट नहीं रही, किसी जगह पे सहाबा का नाम तो नहीं है। अल्लाह के कुरान ने कहा नहीं नहीं नहीं, वल आदियाति गबहा पढ़ोगे तो पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद के सहाबा के घोड़ों की कसमें अपने कुरान में खाता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा सहाबा के घोड़ों की कसमें, अल्लाह के कुरान ने कहा नहीं नहीं। इसी सूरत में अल्लाह का कुरान कहता है सहाबा के घोड़ों की टांगों की कसमें कुरान उठा रहा है। मैंने कहा सहाबा के टांगों की कसमें, कुरान ने कहा नहीं, सहाबा के पांव की कसमें कुरान उठा रहा है। मैंने कहा सहाबा के पांव की कसमें, कुरान ने कहा नहीं। उन पांव के नीचे लोहे से बचने के लिए जो खुर लगाए जाते हैं, अल्लाह का कुरान उन खुरों की भी कसमें उठा रहे। मैंने कहा उन खुरों की कसमें, अल्लाह के कुरान ने कहा नहीं नहीं नहीं। जब ये खुर किसी पत्थर से टकराते हैं, किसी जगह पे चोट खाते हैं, तो उन जगहों से शरारे निकलते हैं, उन जगहों से उजाला निकलता है। अल्लाह का कुरान तो उन शरारों की कसमें भी कुरान में उठाता नजर आ रहा है। फिर यही वजह है हक नवाज ने कसमें उठाकर जान दे डाली। इसारुल कासमी जुदा हो गए, ज़ियाउर रहमान फारूकी ने आधी से ज्यादा दुनिया पर अमीर माविया समेत तमाम सहाबा की इज्जत का डंका बजा दिया। आखिर अपनी जान सहाबा के नाम पे कुर्बान कर गए, बम धमाके में जान दे गए। आजम तारक आए, चेहरे को छल्ली कर दिया गया। मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी से लेकर बड़े बड़े अकाबिर अब्दुल सत्तार तौंसवी, सरफराज खान सफदर, ख्वाजा खान मोहम्मद, अब्दुल्ला दरखास्ती, इन तमाम बड़ों को पूछ लो कि वो बताएंगे कि सहाबा की दुश्मनी में दुश्मन जब मुकाबले में था, हक बनकर जो मैदान में खड़ा था, उसे दुनिया कुछ और नहीं बल्कि हक नवाज जंग भी कहा करती थी।
उन्होंने जवानियां लुटा कर बच्चे यतीम करवा के बीवियों को बेवा छोड़कर नबी के सहाबा की कस्में उठाई। जियाउर रहमान फारूकी के जिस्म को छल्ली कर दिया गया, कुकड़े कर दिया गया। आजम तारक के जिस्म के छल्ली करके उसके ऊपर 52 गोलियां चला दी गई। अली शेर हैदरी सिवा हो गए। हत्ता के मेरी जमात का मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी तक को शहीद कर दिया गया। रब्बे काबा की कसम, वो दिन दूर नहीं, हम भी चले जाएंगे, लेकिन सहाबा की इज्जत पर समझौता। बुलंद आवाज से सारे हाथ बढ़ा के सहाबा की इज्जत पे भरोसा करके हम मैदान में आए हैं। उस पर कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक जिएंगे। खत्मे नबुव्वत भी माथे का झूमर होगी। नमूसे सहाबा हमारे सर का ताज, आले बैत का नमूद हमारे सर की पगड़ी रहेगी। और आखिर में इतना कहना चाहता हूँ, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का